میری طرف سے انفو ہب دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں 33 جزائر پر مشتمل ایک ملک بحرین کی، جو اپنی خوبصورتی اور ترقی یافتہ ہونے کی بدولت پوری دنیا میں خاص مقام حاصل کر چکا ہے۔ ہم آپ کو بحرین سے متعلق کچھ دلچسپ اور حیران کن حقائق سے آگاہ کریں گے، جو آپ کے لیے دلچسپی اور سیر و تفریح کا باعث ہوں گی۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ان تمام نئے آنے والے دوستوں سے التماس کروں گا کہ سب سے پہلے یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل انفو ہب کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا پیغام آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ دوستو، بحرین خلیج فارس میں موجود 33 چھوٹے جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے۔ بحرین کا مکمل اور سرکاری نام کنگڈم آف بحرین ہے، لیکن اس کو عمومی طور پر بحرین بھی کہا جاتا ہے۔ بحرین کے 33 جزائر میں سے صرف 10 ایسے جزائر ہیں جن پر انسانی آبادی موجود ہے، اور باقی جزائر کو اب سیاحت کے لیے آباد کیا جا رہا ہے۔ بحرین کا مطلب ہے دو سمندر، لیکن آج تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ کن دو سمندر کے نام پر اس کا نام بحرین رکھا گیا ہے۔ بحرین 18,38,150 افراد پر مشتمل ہے اور دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 149ویں نمبر پر آتا ہے۔ بحرین کا کل رقبہ 778.3 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 172واں ملک ہے۔ بحرین اپنی آبادی کے لحاظ سے ایشیا میں مالدیپ اور سنگاپور کے بعد تیسرا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ منامہ شہر ملک کا دارالحکومت ہے، جس کا کل رقبہ 27 کلومیٹر ہے، اور بحرین کی 3 لاکھ سے زیادہ آبادی اسی شہر میں مقیم ہے۔ منامہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لینڈ آف ڈریم یعنی خوابوں کا جزیرہ ہے۔ اگر بحرین کے محل وقوع کی بات کی جائے تو اس کے ہمسایہ ممالک میں قطر، سعودی عرب، ایران، کویت، UAE اور عمان ہیں۔ بحرین سے سعودی عرب صرف 25 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس دوری کو کم کرنے کے لیے بحرین اور سعودی عرب کے درمیان شاہ فہد برج تعمیر کیا گیا ہے۔ ایسا ہی ایک برج قطر اور بحرین کے درمیان تعمیر کیا جانا تھا، جس پر باقاعدگی سے کام 2008 میں شروع ہونا تھا، لیکن بحرین اور قطر کے درمیان حالات کشیدہ ہونے کی وجہ سے اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ نسلی اعتبار سے بحرین میں 50.60% عربی لوگ ہیں، جن میں سے 46% بحرینی اور باقی 4.60% ایسے لوگ ہیں جو بحرین میں اسلامی فتوحات کے بعد آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ 45.5% لوگ ساؤتھ ایشین ہیں، 1% یورپین اور 1.2% دیگر ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ ساؤتھ ایشین لوگوں میں سب سے زیادہ تعداد انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے آئے ہوئے لوگوں کی ہے۔ بحرین دنیا کی چوتھی سب سے گنجان آبادی رکھنے والی خود مختار ریاست ہے، جس کی آبادی کی کثافت 1646 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ بحرین دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے ملک کی خدمت کرنے والوں کو ملک کی شہریت دے رکھی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 70,000 سے زائد پاکستانی بحرین میں مقیم ہیں، اور ان میں سے 30,000 کے قریب ایسے افراد ہیں جنہیں بحرین میں شہریت دے رکھی ہے۔ بحرین میں شہریت رکھنے والے زیادہ لوگوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو یہاں پر 25 سال سے زائد کا عرصہ گزار چکے ہیں یا کسی سرکاری ادارے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان سے کثیر تعداد سے لوگ بحرین کی سیکورٹی فورسز میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ بحرین کی سیکورٹی پاکستانی سر انجام دے رہے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ ان لوگوں کو بحرین کی طرف سے شہریت بھی دی جا چکی ہے۔ اسلام بحرین کا سرکاری مذہب ہے۔ ملک میں مسلمانوں کی آبادی 81.2% ہے، کرسچین 10% اور 9.8% ہندو، سکھ، یہودی اور دیگر چھوٹے چھوٹے مذاہب کو ماننے والے موجود ہیں۔
बहरीन एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद यहाँ बेहयाई आम नजर आती है, क्योंकि इस मुल्क में रहने वालों की अक्सरियत लिबरल सोच रखने वालों की है। यही वजह है कि यहाँ सऊदी अरब जैसे सख्त कवानीन नहीं हैं, बल्कि बहरीन में दुबई की तरह बेहयाई और फहाशी के अड्डे कायम हैं। यूँ तो बहरीन में हसीन व जमील मसाजिद की कसीर तादाद मौजूद है, और दूसरी तरफ फहाशी फराहम करने वाले क्लब्स और नाइट कैसीनो भी आम हैं। अरबी मुल्क की सरकारी ज़बान है, लेकिन अंग्रेज़ी ज़बान भी मुल्क में बड़े पैमाने पर बोली जाती है, जबकि फ़ारसी, उर्दू, तमिल, बांग्लादेशी और हिंदी दीगर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में हैं। मुल्क में तजारती अदारों और सड़कों पर लगे निशान अंग्रेज़ी और अरबी दोनों ज़बानों में लिखे होते हैं। बहरीन में 14 साल तक तालीम लाजमी करार दी गई है। सरकारी स्कूलों में बहरीन की शहरियत रखने वालों के लिए तालीम और निसाबी कुतब की फराहमी मुफ्त की जाती है। यहाँ पर लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल बनाए गए हैं। बहरीन में तालीम की शरह 95.7% के करीब है। बहरीन में सेहत के हवाले से बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। हुकूमत की तरफ से बहरीनी शहरियों के लिए मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं। बहरीन में पहला अस्पताल 1898 में अमेरिका की तरफ से एक डिस्पेंसरी के तौर पर खोला गया था। बहरीन में उम्र की औसत शरह मर्दों के लिए 73 साल और औरतों के लिए 76 साल है। मुल्क में दीगर करीबी ममालिक की निस्बत एड्स और HIV का फैलाव बहुत कम है। बहरीन इस वक्त सेहत के हवाले से मोटापे की बीमारियों का शिकार है। मुल्क की 28.9% मर्द आबादी मोटापे का शिकार है, जबकि औरतों में मोटापे की शरह 38.2% है। बहरीन में मौत की 32% वजूहात हार्ट अटैक है, जबकि दूसरे नंबर पर कैंसर की वजह से अमवात होती हैं। सियाहत को मुल्की मईशत में अहम दर्जा हासिल है। 2017 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ से ज़्यादा गैर मुल्की सियाहों ने बहरीन के सियाहती मकामात का सफ़र किया था। बहरीन अरब सकाफत और 5000 साल पुरानी तहजीब का घर है। मुल्क में मौजूद किलात किला वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। बहरीन नेशनल म्यूजियम में मौजूद नवादरात 9000 साल पुराने लोगों से मिलते हैं। मुल्क में दीगर सियाहती मकामात में अल हमीस मस्जिद, इर्द किला, बारबर का मंदिर, सार मंदिर और ट्री ऑफ लाइफ है। ट्री ऑफ लाइफ एक ऐसा दरख्त है जो बिना पानी के एक सहरा में 400 साल से मौजूद है। इस दरख्त को देखने के लिए हर साल लाखों लोग इस सहरा का रुख करते हैं। बहरीन न्यूज़ एजेंसी की तरफ से एक अंडर वाटर थीम पार्क बनाने का मंसूबा पेश किया गया है, जो तकरीबन 1 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला पार्क होगा। ये थीम पार्क दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से शाया की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन मगरबी एशिया और मशरक़ी वस्ता के ममालिक में सबसे बेहतर तरक्की करने वाला मुल्क है। मुल्क की तरक्की में अहम और सबसे ज़्यादा किरदार पेट्रोलियम पैदावार और प्रोसेसिंग मसनूआत की एक्सपोर्ट है, जो मुल्की GDP में 60% तक हिस्सेदार समझी जाती है। मुल्की दरामदात में खाने की अशिया ख़ास तौर पर गोश्त और फल काबिल ज़िक्र हैं। बहरीन की बहुत थोड़ी ज़मीन काबिल काश्त है, लेकिन ज़री ज़मीन इंतहाई ज़रख़ेज़ मानी जाती है, जिसमें कुछ इक़साम के फल और चावल बकसरत पैदा होते हैं। बहरीन की कुल GDP 75.174 बिलियन डॉलर है, जो GDP के लिहाज से दुनिया में 95 नंबर पर आता है। बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार है। एक बहरीनी दिनार पाकिस्तानी 577.24 रुपयों के बराबर है। इंडियन करेंसी में 218.45 रुपये और बांग्लादेशी करेंसी में 277.81 टका बनते हैं। बहरीन की करेंसी कुवैत के बाद दुनिया में दूसरी मजबूत तरीन करेंसी शुमार की जाती है। बहरीन का सबसे ज़्यादा और मकबूल तरीन खेल फुटबॉल है। बहरीन की कौमी टीम फीफा वर्ल्ड कप में भी हिस्सा ले चुकी है। मुल्क के दीगर मकबूल खेलों में बास्केटबॉल, रग्बी यूनियन, हॉर्स रेसिंग, मार्शल आर्ट्स, क्रिकेट, साइकिलिंग और मोटर रेस शामिल है। बहरीन एक इस्लामी मुल्क होने की वजह से मुल्क में इस्लामी रस्म व रवाज पाया जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक मगरबी रंग भी नज़र आता है। यहाँ पर औरतों के लिबास में हिजाब और अबाया शामिल हैं, जबकि मर्दाना लिबास में कैफिया, कोतरा,
और सर पर एक ईगल जैसा रवायती हेड ड्रेस शामिल है। बहरीन ने 1976 में हम जिन्स परस्ती को कानूनी हैसियत दी थी, लेकिन बाद में बहुत सारे ऐसे अफराद को गिरफ्तार भी किया गया जो हम जिन्स परस्ती में मुलविस थे। BIA मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जहां से मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाजें चलाई जाती हैं। मुल्क में पुख्ता और बेहतरीन हाईवेज मौजूद हैं जो आने वाले मुसाफिरों को बेहतरीन सफ़र से आरास्ता करते हैं। बहरीन की मीना सुलेमान बंदरगाह मुल्क में मरकजी बंदरगाह की हैसियत रखती है। बहरीन की जंगली हयात में 330 इकसाम के परिंदे, जिनमें 26 ऐसी नस्लें हैं जो बुनियादी तौर पर बहरीन से ताल्लुक़ रखती हैं। बहरीन में सिर्फ 18 इकसाम के ऐसे जानवर हैं जो दूध देते हैं। तितलियों की 121 इकसाम और पौधों की 307 इकसाम मौजूद हैं। बहरीन का कौमी जानवर अरबियन ऑरियक्स है। बुलबुल कौमी परिंदा है और खजूर कौमी दरख्त है। बहरीन वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। मुल्क का कॉलिंग कोड +973 और डोमेन नेम .bh है। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान फासला 1898 किलोमीटर है। अगर आप पाकिस्तान से बाय एयर सफ़र करते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बहरीन से मुतल्लिक़ दिलचस्पी से भरपूर एक प्यारी सी वीडियो। मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये काफ़ी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से ज़रूर नवाजा करें। मेरी और आपकी मुलाकात होगी ऐसी ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपने इस दोस्त वज़नफर हयात को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।